Dear students, today class 10th Maths worksheet number 56 Surface Area and Volume. Chapter of book, chapter number 13. Different shapes as cuboid, cube, right circle cylinder, right circle cone, sphere and hemisphere. इस चैप्टर्स में आपको रिलेटेड टू सॉलिड ज्योमेट्री, सॉलिड शेप की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर डिस्कस करना है. जनरली आप बात करें तो यहाँ जो डिस्कस करने के लिए वर्कशीट में कुछ कहा है कि आपके पास कुछ बॉक्स है, उसको कवर करने के लिए कितना पेपर सीट चाहिए. तो जितना उसको कवर करने के लिए कवर सीट होती है उसको क्रस्ट जो है कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं या टोटल सरफेस एरिया कहेंगे. देन डिफरेंस ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया, it is the defined as the area of the surface of an object or shape. It can be found out into two way: total surface area, area of the whole surface, and the lateral or the curved surface area, area of the sum of the surface of the objects or the shape. It is a two-dimensional measurement at measure and the square unit and the meter square or centimeter square. Four examples of the surface area are wrapping of gift, painting of wall, covering of the bowl with a lid. Then come to the volume. It is defined as the space occupied by any solid object if the object has hollow when. Then the volume is defined as how much quantity an object can hold. For hollow objects, volume is termed is capacity. It is a three-dimensional measurement and the measure in the cubic unit on the meter cube, centimeter cube. For example, water tank, matches box and soup in bowl. डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स आपके लाइफ में मिलते हैं जिसमें आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ आपको कुछ फॉर्मूलोज से इंट्रोड्यूस करा दें तो सबसे पहले क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड एज ए शेप ऑफ द दिस डिफरेंट फेस सॉलिड बॉडी एज फॉर एग्जांपल रूम. यदि आप रूम को देखेंगे तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट होगी, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं. डिफरेंट बॉक्सेस जिनकी लेंथ ब्रेड्थ डिफरेंट हो वो क्यूबॉइड होगा. तो यहाँ पर आता है सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स इसकी लेंथ को लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम होगा. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स फोर वॉल का एरिया. फोर वॉल मीन्स रूम की फोर वॉल्स का एरिया. the lateral surface area or the curved surface area. Curved surface area is also denoted by CSA या LSA means twice L plus B into H. जबकि आपके पास टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2LB plus BH plus LH. इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया. इन केस आपके पास वन साइड ओपन बॉक्स हो तो उसका जो एरियाज आप फाइंड करेंगे तो वन साइड ओपन कर देंगे तो यहाँ पर ट्वाइस ये होगा बट यहाँ उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं वन साइड को. नाउ कम टू द क्यूब. एंड क्यूब इज द शेप ऑफ द ऑल साइड आर इक्वल एज फॉर एग्जांपल टेकिंग टू मैजिक क्यूब, डाइस, लूडो, आइस क्यूब. Different type of the boxes have the all sides are same. It called the cube as length, breadth, height also same. So now come to the volume of the cube is a cube. Lateral surface area of the cube is a four surfaces areas का sum क्योंकि four wall lateral surface area, curved surface area is a four wall या four faces area and the total surface area of the cube is 6a square. Next come to the right circular cylinder. Cylinder is the shape of the pipe and any pipe you call be cylinder and have this shape as this. And
फोल्ड ए पेपर मेक ए सिलेंडर। यदि आप किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो वो एक सिलेंडर की शेप ले लेता है। एज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, जिसको आप एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देन लेटरल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच and this total surface area is 2 pi r h plus 2 pi r square। in case आप 2 pi r कॉमन ले लें तो h plus r आपका ये होगा। then right circular cone is this shape as a birthday cap and the mehndi cap or and the any other shape in the form of this, as volume of cone is 1/3 pi r square h, means 1/3 of the volume of cylinder. Then surface area, lateral surface area of the cone is pi r l, where l equal to root of h square plus r square. But total surface area of the cone is pi r l plus pi r square. in case pi r कॉमन लेंगे तो l plus r, ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहां से भी आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आ जाएगा। देन द स्फीयर इज अ बॉल एंड स्फेरिकल शेप एज ए यू हैव यूनिवर्स में आपके पास अर्थ का है, मून का है, सन का है, जो भी आपके पास स्फेरिकल शेप है उनको हम स्फीयर कहते हैं। बॉल है वो चाहे क्रिकेट बॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल, all kinds of shape are whole as many types of fruits is spherical shape, as volume of sphere is 4/3 pi r cube, and lateral outward surface area is also same to the total surface area is 4 pi r square is 4 pi r square also. But now you come to the hemisphere. Hemisphere means half of sphere, means volume of sphere is 2/3 pi r cube. Lateral surface area of the hemisphere is 2 pi r cube square and total surface area of the hemisphere is 3 pi r square. तो ये आपके पास टर्म्स हो गई, ये फॉर्मूलाज की लिस्ट हो गई। आप इसे निकाल सकते हैं। आपके पास ये दो जितनी भी शेप्स हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिलेबस में आएंगे। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसने कहा नाउ आंसर दिस इज द नेम फॉलोज एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिचुएशंस। नंबर ए इज आपके पास ग्लास में कुछ कलरफुल वाटर एंड आइस है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। सेकंड में एक बुक को किसी पेपर से रेप किया जा रहा है तो उसमें सरफेस एरिया है। सी में भी आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वॉल को पेंट किया जा रहा है, तो यहाँ भी सरफेस एरिया में सरफेस को पेंट किया जा रहा है, तो ये भी सरफेस एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। डी में टेबल कवर है, वो भी सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई में आप देख रहे हैं तो एक आपके पास जो शेप है वो बॉक्सेस हैं और बॉक्स शेप्स एज ए क्यूबॉइड और द क्यूब, तो आप इसको क्यूब कह सकते हो, जिसको आप यहाँ पर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ आपके पास इसका वॉल्यूम भी आप कह सकते हो कि आपके पास एक बॉक्स में छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं, और लास्ट इज एफ आल्सो इज ए वॉल्यूम एज ए वैल्यू, ये भी आपको एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको कहा गया है कि नेम द शेप ऑफ द फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट्स। ए ओपन राउंड बाउल मींस हेमिस्फीयर। यदि आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है वो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट क्या होगा? सेकंड पार्ट में कहा गया राउंड वेल एज आल्सो इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। थर्ड में आपको
नाम दे दें। तो थर्ड में आपको शेप दी गई है एक कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब मीन्स कॉर्न, ये एक कॉर्न की शेप में होता है, तो आप इसको कॉर्न रिप्रेजेंट कर दें। फोर्थ में आप देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में आपको एक शेप बताया रूम इन ए हाउस एज ए क्यूबॉइड। और फिफ्थ में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज ए मून एज ए स्फीयर। यहां आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन के ऑल पॉइंट्स एंड थर्ड क्वेश्चन में कहा फिल द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे फर्स्ट में कहा है द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज ए स्क्वायर। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप ले सकते हो एज फर्स्ट पार्ट तो स्फीयर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं स्क्वायर। जो क्यूब की शेप्स हैं वो किस शेप की होती हैं, वो स्क्वायर शेप की होती है। सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में ए डैश व्हेन फोल्ड बिकम ए सिलेंडर। किसको फोल्ड करके सिलेंडर बनता है, तो रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट को यदि आप फोल्ड करेंगे तो वो एक सिलेंडर की शेप ले लेता है। नंबर थर्ड द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन इज स्फीयर, सर्कल। थर्ड में आपके पास आएगा सर्कल। सर्कल बेस होता है कोन का। तो यहां पर आपकी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑल अदर क्वेश्चंस कंप्लीट। डू योर वर्कशीट complete by help of this